تھوڑا آگے کرتے ہیں اسی پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما۔ عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء بست، أوتيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون۔ رواه الإمام الهمام المسلم في صحيحه۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، یا الہی آج تو صدیق سا ایمان دے، آنکھ دے اور اسوہ فاروق کی پہچان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، کر مبرہ عیب سے اور عفت عثمان دے، فقر دے کرار کا اور حیدری اوسان دے۔ معزز دوستو، آج 5 ستمبر 2024 بروز جمعرات ہے، اور میں یہاں بہاول نگر میں عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کے سلسلے میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہوں۔ ہماری اسٹیج حضرت شیخ سمیت جملہ معزز مکرم علماء کرام سے کھچا کھچ بھر چکی ہے۔ میں فردن سب کے نام سے واقف نہیں ہوں، اللہ ان سب کی عمروں میں برکات عطا فرمائے۔ میرے ساتھیوں، ابھی جب میں ہال میں داخل ہوا تو بہت سے احباب نے مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش فرمائی، میں نے صرف سلام کا جواب دیا۔ میں اس کی وجہ عرض کر دوں، اگر میں کسی ایک سے مجمع میں ہاتھ ملاؤں، دوسرے ساتھی ناراض ہوتے ہیں کہ جی ان سے ملتا ہے ہم سے نہیں ملتا، اس لیے میں نے سب سے برابری کا معاملہ رکھا۔ یا تو وقت ہو پھر بندہ سب سے ملے، اور اگر وقت نہ ہو تو سلام اور جواب کو بھی انسان کافی سمجھ لے۔ معزز دوستو، میں عقیدہ ختم نبوت پہ چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جتنے عقائد ہیں وہ تمام عقائد کی بنیاد عقیدہ توحید ہے، باقی عقائد بعد میں ہیں۔ مثلا اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ رازق، اللہ حی، اللہ محیی، اللہ ممیت، اللہ نے سب کو زندہ کیا، اللہ زندہ رکھنے والا، اللہ سب کو موت دیتے ہیں، اللہ موت دینے والا، رب کریم نے رزق بھی دیا ہے، مالک بھی ہیں، خالق بھی ہیں، بغیر نقشے کے پیدا بھی کیا ہے۔ یہ ساری باتیں ہم اللہ کے لیے مانتے ہیں، لیکن توحید بنیاد ہے۔ توحید کا مطلب اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا، اللہ اپنی صفات میں بھی اکیلا۔ ذات کہتے ہیں پرسنالٹی کو، رب کریم کی شخصیت جیسی شخصیت کوئی نہیں ہے۔ صفات کہتے ہیں امور کو، کام کو، ذمہ داری کو، رب کریم جیسے کام بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ اسے کہتے ہیں توحید فی الذات، توحید فی الصفات، یعنی اللہ جیسے کام بھی کسی کے نہیں ہے، اللہ جیسی ذات بھی کسی کی نہیں ہے۔ اللہ کی ذات کے بارے میں جتنے عقائد ہیں ان میں بنیاد عقیدہ توحید ہے۔
کوئی بندہ اگر کہے میں اللہ کو مالک خالق رازق جبار قدوس صبور سب کچھ مانتا ہوں اور اللہ کی ذات پر ایمان لاتا ہوں لیکن توحید نہیں مانتا، ہم کہیں گے تو نے سارے عقیدے مان کے بھی عقائد میں زیرو بن چکا ہے، کیونکہ بنیاد توحید ہے، توحید نہیں مانے گا باقی عقائد ماننے کی حیثیت نہیں رہتی۔ ایسے ہی سرور کائنات تاجدار مدینہ تاجدار رسالت سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جتنے ہم عقائد رکھتے ہیں ان عقائد میں بنیاد عقیدہ ختم نبوت ہے، باقی عقیدے بعد میں ہیں، عقیدہ ختم نبوت پہلے ہے۔ اب کوئی بندہ کہے میں حضور پاک کو امام الانبیاء مانتا ہوں، سرتاج انبیاء مانتا ہوں، آمنہ کا در یتیم مانتا ہوں، عبداللہ کا لخت جگر مانتا ہوں، نبی پاک کو صاحب الغار مانتا ہوں، صاحب المزار مانتا ہوں، صاحب الحجرت والمعراج مانتا ہوں، صاحب القرآن مانتا ہوں، رسالت مآب علیہ السلام کو حضرات حسین سمیت تمام نواسیوں کا نانا جان مانتا ہوں، حضرت خدیجہ سے لے کر حضرت سودا تک ایک ایک پیغمبر کی بیوی کا شوہر مانتا ہوں، پیغمبر کے 3 بیٹے پیغمبر کی 4 بیٹیوں کا والد مانتا ہوں، حضور پاک کو سب کچھ مانتا ہوں کہ پیغمبر نبی الملاحم ہے، پیغمبر جنگی کمانڈر ہیں، پیغمبر نے حالت امن حالت جنگ میں اللہ کے حکم کو بیان اور قائم اور دائم رکھا ہے، یہ سب مانتا ہوں۔ حضور پاک علیہ السلام کے لیے لواء الحمد مانتا ہوں، قیامت میں جھنڈا حضور پاک کے ہاتھ میں ہوگا، پیغمبر کو صاحب مقام محمود مانتا ہوں کہ جو سب سے بڑا جنت کا مقام ہے وہ حضور پاک کے اوپر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، یہ سب کچھ مانے پر وہ ختم نبوت نہ مانے۔ ہم کہیں گے جیسے اس شخص نے تمام عقائد مان کے توحید کا انکار کیا تھا، اسلام سے باہر تھا، تو بھی سب کچھ مان کے ختم نبوت کا انکار کر کے اسلام سے باہر۔ یہ میں بات اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ اور ہم سمجھیں عقیدہ ختم نبوت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی ویلیو کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، اس کا درجہ کیا ہے، تاکہ ہم یہ بات اپنی ذہن میں بٹھا لیں، اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ ختم نبوت وہ بنیاد ہے جس کو مانا تو شریعت مانی، جس کا انکار کیا تو شریعت کا انکار۔ آپ کے ذہن میں سوال اٹھے گا مولانا عقیدہ ختم نبوت پہ آپ نرمی کیوں نہیں دے رہے، کچھ گنجائش تو دے دیں، کچھ نرمی تو دے دیں۔ بعض لبرل ہم سے بھی علماء سے بھی سوالات کرتے ہوں گے، مجھ سے تو واسطہ زیادہ پڑتا ہے، میں میڈیا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا سے ریلیٹڈ ہوں، تو لوگ پوچھتے ہیں کہ حضور پاک کی نرمی تو اعلیٰ درجے کی، حضور کی اخلاق تو اعلیٰ درجے کے، پیغمبر گنجائش دیتے تو اعلیٰ درجے کے، پیغمبر نے لا تسریب علیکم اليوم کہہ کے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا، آقا انعامدار تو دوسروں کا بوجھ اٹھانے والے تھے، پیغمبر کریم تو دوسروں کے ساتھ تعاون کرنے والے تھے، نبی پاک کی صلہ رحمی اعلیٰ درجے کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات اعلیٰ درجے کے تھے، تو پھر تم نرمی کیوں نہیں کرتے، پھر اس عقیدے پہ سختی اور مضبوطی کی بات کیوں ہے؟ میں ایک بات سمجھانے لگا ہوں بہاول نگر کے غیوروں، ایک بات ذہن میں رکھنا، شریعت کے 2 بنیادی اجزاء ہیں، مل کے شریعت بنتی ہے، اگر ان میں ایک بنیادی جز کو لیں وہ شریعت کا نصف تو ہو سکتا ہے، شریعت کا 50-50 تو ہو سکتا ہے، شریعت کا آدھا تو ہو سکتا ہے، کامل شریعت نہیں ہے۔ کامل شریعت کے 2 اجزاء ہیں، ایک جز کو عقائد کہتے ہیں، دوسری جز کو مسائل کہتے ہیں۔ عقائد اور ہوتے ہیں، مسائل اور ہوتے ہیں۔ جو پیغمبر کی نرمی بتاتا ہے میں اسے واضح طور پہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی پیغمبر نے پوری زندگی میں عقائد میں نرمی دی ہو، آپ ہمیں پیش کر دیں، عقائد میں گنجائش دی ہو آپ ہمیں پیش کر دیں، عقائد میں پیغمبر اسلام نے کوئی ڈھیلا معاملہ اختیار فرمایا ہو آپ ہمیں پیش کر دیں، ہم بصر و چشم قبول کریں گے، سر آنکھوں پہ رکھ کے قبول کریں گے، عقائد میں نرمی دیں گے۔ لیکن تم عقائد
में पूरा जोर लगा के भी पैगंबर की 63 साल जिंदगी में अकायद में पूरी हिम्मत सर्फ करके भी तो पैगंबर इस्लाम के शब व रोज में नरमी नहीं दिखा सकते। मेरे पाक पैगंबर की नरमी है तो मसाइल में है, मसाइल में तवज्जो है। उलमा आज भी, मुफ्तियान आज भी, उलमा कराम आज भी आपको मसाइल में नरमी देते, गुंजाइश देते, ढील देते आपको नजर आएंगे, क्योंकि शरीयत अकायद के बाद मसाइल में नरमी देती है, शरीयत अकायद में नरमी नहीं देती, शरीयत अकायद में गुंजाइश नहीं देती। याद रखें, अल मुफ्ती मुवक्किल शरिया नाइब नबी मुफ्ती हुआ करता है जब वक्त के नबी ने अकायद में नरमी नहीं की, जब वक्त के नबी ने अकायद में गुंजाइश नहीं दी, जब वक्त के नबी ने अकायद में कोई नरमी नहीं रखी। तो जो मुफ्ती है, जो मौलवी है, जो आलम है, वो आलम बाद में है, पैगंबर का वारिस पहले है, मुफ्ती बाद में है, पैगंबर का वारिस पहले है। कोई कारी है वो क़िराअत में पैगंबर का वारिस है, कोई हाफिज है वो हिफ्ज़ में पैगंबर का वारिस है, कोई खानकाह का पीर है वो तसव्वुफ में पैगंबर का वारिस है, कोई मुबल्लिग है वो तबलीग में पैगंबर का वारिस है, वो आलम है वो इल्म में पैगंबर का वारिस है, वो मुफ्ती है वो इफ्ता में पैगंबर का वारिस है, वो इस्लामी सियासतदान है वो सियासत में पैगंबर का वारिस है। याद रखें, अकायद में पैगंबर ने नरमी नहीं दी, उनके वरसा भी नरमी नहीं देंगे। अकायद में नबी ने गुंजाइश नहीं दी, इनका वारिस भी गुंजाइश नहीं देगा, क्योंकि वारिस वो है जो मूरस को समझे, वारिस वो है जो मूरस की इत्तिबा करे, वारिस वो है जो मूरस की बात को तस्लीम करे। जब मूरस पैगंबर है उसने गुंजाइश दी होती, वारिस गुंजाइश देता, उसने नरमी दी होती, वारिस नरमी देता। अगर वारिस नरमी देता है वो पैगंबर का वारिस नहीं है, अगर वारिस गुंजाइश देता है वो नबी का वारिस नहीं है। उसकी विरासत छिन जाएगी, उसका इल्म खत्म हो जाएगा, उसकी क़िराअत खत्म हो जाएगी, उसका तसव्वुफ जाता रहेगा, उसकी तबलीग जाएगी, तदरीस जाएगी, तालीम जाएगी, तजवीज़ जाएगी। वो पैगंबर का वारिस तब है जहां पैगंबर ने नरमी दी है, वो नरमी दे, जहां मजबूती की है वहां मजबूती दे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जनाब मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब। हम इसीलिए कहते हैं कि हमसे नरमी की बात वहां करो जहां नरमी नबुव्वत ने दी है। वो नरमी अकायद में नहीं है, वो नरमी मसाइल में है। मसाइल में गुंजाइश दे देंगे, लेकिन याद रखना अकीदे में मेरे पाक पैगंबर ने गुंजाइश नहीं दी है। आपके सामने मैं दलील पेश करने लगा हूँ, अपने कान की खिड़की खोल के दिल तक मेरी इस दलील को रास्ता देना। कुरान करीम उठाओ, मुझे कुरान में सूरतुल मुस्लिमून कहीं नहीं मिलती, लेकिन मुझे कुरान में सूरतुल काफिरून मिलती है। भाई वजह क्या है? सूरतुल मुस्लिमून नहीं है, सूरतुल काफिरून है। कुरान में या अय्युहल मुस्लिमून नहीं है, कुरान में या अय्युहल काफिरून है। भाई बात मसाइल की नहीं है, बात अक़ल की है। आप कहेंगे कैसे? अल्लाह का कुरान कहता है कुल या अय्युहल काफिरून, महबूब मुस्तफा ऐलान फरमा दे। ऐलान में नरम लफ्ज नहीं होंगे, नरम लफ्ज नहीं होंगे, नरम अल्फाज का चुनाव नहीं होगा। काफिर को मुंह पे काफिर कहते हुए अंदाज़े तहाक़ुक़ में आप इन्हें खिताब फरमाइए कुल या अय्युहल काफिरून। मैं पूछना चाहता हूँ, क्या काफिर काफिर कह के भी आप तबलीग कर सकते हैं? क्या किसी के काफिर को उसके मुंह पे कुफ्र वासे करके भी आप उसे अपने करीब कर सकते हैं? मैं कहता हूँ नहीं, काफिर को काफिर कह के करीब नहीं किया जा सकता, काफिर को काफिर कह के तबलीग नहीं की जा सकती। भाई नरमी करेंगे तब तबलीग होगी। तो पता चला तबलीग का मसला मसाइल में है, और कुफ्र को मुंह पे कुफ्र कहना इसका ताल्लुक अकायद से है। भाई बात क्या थी? आप इस आयत की तफसीर उठा लें, इस सूरत की शरह उठा लें। हर मुफस्सिर जो इस सूरत की तफसीर करता है, हर शारे जो इस सूरत की तशरीह करता है, हर मुबय्यिन जो इस सूरत की तबयीन और वज़ाहत और एक्सप्लेनेशन करता है, वो आपको लिखता बताता सुनता सुनाता नजर आएगा कि मक्का मुकर्रमा का शहर था, कुफ्फार
रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के दरबार में आए, आकर कहने लगे कि जब से आपने नबुव्वत का ऐलान किया है हमारे घरों में लड़ाइयां बढ़ गई हैं। बेटा बाप का मुखालिफ है, बेटी माँ की मुखालिफ है, माँ औलाद की मुखालिफ है, चचा की भतीजे से नहीं बनती, मामू की भांजे से नहीं बनती, भांजे के मामू से नहीं बनती, खानदान में तफरका है। हुज़ूर पाक ने पूछा आप चाहते क्या हो? हम ये चाहते हैं हम दोबारा नरमी, हम दोबारा गुंजाइश, हम दोबारा अमन, हम दोबारा चाशनी के माहौल में चले जाएं। पैगंबर करीम ने कुफार के ज़हन पढ़ने के लिए पूछा बताओ तुम्हारे ज़हन में प्लान क्या है? हम कौन सी तरतीब इकट्ठी करके दोबारा नरमी में जा सकते हैं? किस तरतीब पे अमल करके वापस उसी जिंदगी में पहुंच सकते हैं जहां अमन था, जहां चाशनी थी, जहां सुकून था? वो कहने लगे कि हम एक फार्मूला देते हैं बहावल नगर के गयूरो, अगर फार्मूला मसाइल का होता नबुव्वत ने तस्लीम करना था, अगर फार्मूला अमन मसाइल में नरमी का होता उसमें तवस्सु होती, पैगंबर कबूल करते। लेकिन गयूर दोस्तों मसाइल का फार्मूला नहीं था, अकायद पे डंडी मारना थी, अकायद में गुंजाइश देनी थी, और अकायद में अकीदे के अंदर गुंजाइश नहीं होती। वो कहने लगे हम ये चाहते हैं हम अल्लाह पे ईमान लाएं, हम ये चाहते हैं हम आपको नबी माने, हम ये चाहते हैं हम आपकी रिसालत को तस्लीम करें। फरमाया बहुत अच्छा, आगे क्या प्लान है? उसने कहा जी प्लान ये है पूरा 1 साल हम आपके रब की इबादत करेंगे। जब 1 साल पूरा हो जाएगा फिर उसके बाद आप हमारे बुतों की इबादत करेंगे। 1 साल पूरा होगा फिर आपके रब की इबादत, 1 साल पूरा होगा बुतों की इबादत, यूं साल साल, यूं 50-50, यूं आधा आधा चलता रहेगा और मामले में अमन होता चला जाएगा। ये बात कुफार ने अमन के फार्मूलाज के तौर पे, जैसे कहते हैं फार्मूला ऑफ पीस, उस तौर पर उन्होंने पेश किया। अब आओ मुझे अकायद में और खत्म नबुव्वत पे नरमी का दर्स देने वालों, आओ पैगंबर का जवाब तो सुना दो। या तो किताब और कुरान में लिखा हुआ ना हो, या तो अल्लाह ने कुरान की आयत में मेंशन न किया हो। बताइए इस सवाल का जवाब हुजूर ने क्या दिया? बड़ी नरमी सुनाते हैं, अजी कादियानियों के लिए गुंजाइश पैदा कर दिया, अजी खत्म नबुव्वत पे मौलवी बड़े गुस्सा हो जाने की मसला है। मैं कहता हूँ इस सवाल का जवाब पैगंबर ने क्या दिया? याद रखें जुबान मुस्तफा अभी खामोश है कि फरमाने खुदा नाज़िल है। फरमाया महबूबम कुल, आप ऐलान फरमाइए। अल्लाह फरमाइए माज़ा अक़ूल, ऐलान क्या है? फरमाया ऐलान ये है या अय्युहल काफिरून, ओए काफिरो, ओए बेईमानो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं कभी बुतों की इबादत नहीं करूंगा। नारे तकबीर, ताजदार खत्म नबुव्वत, शान सहाबा, शान अहले बैत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मिर्ज़ा कादियानी पे लानत, मिर्ज़ा कादियानी की ज़ुर्रियत पे लानत। मेरा एक सवाल है, पैगंबर इस्लाम को जब भी अमन की तरफ बुलाया जाए तो रिसालत मआब तो अमन के लिए इस हद तक चले जाते हैं कि हजरत उमर जैसे को भी सुलह हुदैबिया पे कहना पड़ता है कि या रसूल अल्लाह हम हक पे नहीं है, आप फिर भी इनकी शर्तें मान रहे हैं। सुलह के लिए तो रसूलुल्लाह इतने ना, वहाँ कारकुन का जज्बा उठ जाता है, लेकिन क़यादत की पॉलिसी उन कारकुनों को भी माननी पड़ती है। इधर रसूलुल्लाह ने नरमी क्यों नहीं की? तो उस सुलह हुदैबिया पर तो जिहाद का हुक्म आ चुका था, फिर भी नरमी। ये तो मक्की जिंदगी है, इधर तो कोई जिहाद का हुक्म अभी नहीं है, फिर भी मजबूती। वजह क्या है? ये मैं इमाम राजी रहमतुल्लाह के अल्फाज को अपने तौर पे पेश कर रहा हूं। इधर फिर भी आप इधर नरमी का हक बनता था कि अभी तो जिहाद का हुक्म भी नहीं उतरा, अभी तो मक्की जिंदगी है। तो क्यों? मसला अकायद। फरमाया ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं तुम्हारे फार्मूले को ऐसे उड़ाता हूं जैसे पांव की ठोकर से उड़ा दिया जाता है। ये मैं अमीर अजीमत की जुबान में कहूं कि चटियल मैदान में फुटबॉल को किक मारी जाती है। वाह सुभान अल्लाह। मेरा एक सवाल, तवज्जो, मैं एक बात पूछ चले जाऊं। अगली आयत क्या है? कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून, आगे पढ़े।
भला अंतुम उलमा बैठे हैं, अब तर्जुमा पूछ लेना। ये जुमला गौर करने का, सुने सुने। वला अंतुम आबिदून मा आबुद, तुम लोग भी अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं हो। मेरा एक सवाल है, तवज्जो, क्यों नहीं? वो तो खुद ऑफर कर रहे हैं हम 1 साल अल्लाह की इबादत करेंगे, तो अल्लाह ने ये क्यों फरमाया वला अंतुम आबिदून मा आबुद, तो तुम इबादत करने वाले नहीं? हालांकि वो तो करने वाले, वो तो इरादा कर रहे हैं, वो तो ऑफर कर रहे हैं, वो तो अपनी नीयत पेश कर रहे हैं। एक ही जवाब, एक ही, कि अकीदे में डंडी मार के अकीदा मानना अल्लाह की इबादत नहीं। अकीदे में डंडी मार के कहा था 1 साल लिमिटेड टाइम, महदूद वक्त हमने दिया है, तो महदूद वक्त वो भी शर्त रख के अकीदे पे, तो रब ने फरमाया 1 साल नहीं, तुम 1,00,000 साल की भी शर्त लगाओ ना कि उसके बाद बुत की इबादत करेंगे, जो तुम नहीं कर सकते, फिर भी तुम अल्लाह की इबादत करने वाले नहीं। इससे पता चला अकीदे में नरमी पैगंबर में नहीं। समझ आई या नहीं? आओ जरा मैं हदीस पाक पढ़ने लगा, ये मैंने आयत पढ़ी। सीरत इब्न हिशाम उठाए, इमाम इब्न हिशाम ने यही वाक़या एक और अल्फाज में पेश किया है। वो इरशाद फरमाते हैं, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के शफीक और रहीम चचा जनाब अबू तालिब जिंदा तशरीफ फरमा थे। मक्का के लोग उनके पास आए, आकर कहने लगे, अबू तालिब आप अपने और हमारे दरमियान, अपने भतीजे और हमारे दरमियान ब्रिज का किरदार, पुल का किरदार अदा करें तो बात बन जाए। उनने पूछा क्या? कहा जी हम चाहते हैं मक्का मुकरमा में नरमी हो जाए, वो किसी तरह बात मानने पर तैयार नहीं है, आप जरा भतीजे को कायल करें। अबू तालिब बड़े अक्लमंद इंसान थे, उनके रसूलुल्लाह पे शफ़क़त बहुत ज्यादा थी, ईमान की बहस अपनी जगह, लेकिन पैगंबर करीम के साथ नरमी, शफ़क़त, मोहब्बत और मवद्दत का मामला उनका बिल इत्तेफाक साबित है। तो उन्होंने कहा, ए मक्का के लोगों, मैं दोस्त तो तुम्हारे हैसियत पे बात पूछ लूं, मुझे बताओ अगर मैं ये बात भतीजे के पास ले जाऊं, तुम चाहते हो अमन हो जाए, केवल ताक मुज़ाकरात हो जाए, तो फिर 2 पार्टियां आपस में बैठ के फैसला करें, बतौर सालिस मुझे रखो, तो फिर मेरे भतीजे के लिए कोई इनाम, कोई आप ऐलान भी कर रहे, कुछ ऑफर्स भी हैं, ताकि मैं उन्हें बताऊं, वो उसके बदले में तुम्हारी शर्तें पूरी कर ले। उन्होंने कहा बहुत अच्छा अबू तालिब, हम तुम्हें शर्तों में इख्तियार देते हैं, इस धरती की किसी हसीन महजबीन दिल नशीन औरत पे उंगली भतीजा तेरा रखेगा, हमें किसी के घुटने पकड़ने पड़े, किसी के पांव पे हाथ रखना पड़े, जितना जलीलो खब्बार होना पड़े हो जाएंगे, वो लड़की उसके कदमों में रख देंगे। अगर यूं भी बात न बने तो फिर दिरहम और दनानीर की बात होगी, पैसे और दौलत की बात होगी, हम पैसे और दौलत से इसके पांव को भर देंगे, वो जितनी दौलत चाहेगा हम दे देंगे। अगर ये भी बात नहीं है, फिर हम फॉर एवर, फिर हम हमेशा के लिए उसे अपना बादशाह, अपना किंग, अपना हुक्मरान, फरमा रवा तस्लीम करेंगे, बिला मुकाबला। न कोई उसके मुकाबले में आएगा, न कोई और बादशाह की डिमांड होगी, बस ये जाके कह दे, अच्छा इतनी बड़ी ऑफर अबू तालिब को पूरी जिंदगी में किसी ने नहीं की थी। हज़रत अबू तालिब उठे, रिसालत इमाम के पास आए, भतीजा मक्का मुकरमा के लोग मेरे पास आए, आकर कहने लगे ये 3 शर्तें हैं, इनमें से कोई मान तेरी मर्जी, तीनों मान तेरी मर्जी। अच्छा चचा फिर मुझे करना क्या होगा? फरमाया तौहीद में नरमी कर लेना। अला अन अत्रुक हाज़ल अम्र, चलो मैं पूरा पढ़ देता हूँ, तो जो फरमाया तौहीद में नरमी कर लेना। रिसालत इमाम ने अपने चचा की ज़बानी जब कुफ़ार का ये आफत की बातें सुनी, हुज़ूर पाक ने फरमाया, इमाम इब्न हिशाम ने सीरत शाम में लिखा है, फरमाया या अम्मी, ये या अम्मी, ये अम्मी में आखिर या, इसे या मोहब्बत कहते हैं। ए मेरे प्यारे चचा, लो वज़अ शम्स अला यमीनी वल क़मर अला यसारी अला अन अत्रुक हाज़ल अम्र मा तरक्तहु। चचा जान, ये तो दुनिया की लड़की, दुनिया की दौलत, दुनिया की बादशाहत है, नहीं नहीं, इससे भी मावरा अगर ये लोग जा सकते हैं, आसमान के सूरज के जाएं, उसके जो है ना पांव पड़े, उसे मिन्नत तरला वास्ता देकर लाएं, मेरे दाएं हाथ पे रखें, और चांद लाएं मेरे बाएं हाथ पे रखें। शर्त ये हो अला अन अत्रुक हाज़ल अम्र, मैं अकीदे में गुंजाइश दे दूं, अकीदे में नरमी दे दूं, मैं सूरज चांद को
मेरे दोस्तों, ये आयत और हदीस हमें बता रही है कि अकायद में कोई नरमी नहीं होती। आज मैं खत्म नबुव्वत की बात करता हूँ, आज मैं कादियानियत के मामले में मैदान में आता हूँ, हमारे उलमा आते हैं और इस पर बात होती है तो चंद लिबरल्स बैठ के कहते हैं अजी नरमी दे दे, अजी गुंजाइश दे दे। और गुंजाइश तुम नबी के वारिस से मांगते हो, नबुव्वत इसमें गुंजाइश नहीं देती, अल्लाह इसमें गुंजाइश नहीं देते, तो मौलवी कहाँ से गुंजाइश दे? पर किसी किस्म की कोई नरमी नहीं है। नारे तकबीर, तलवार कुरैशी साहब, नारे खत्म नबूवत, तकबीर। मेरी बात का मतलब कि जब रसूलुल्लाह गुंजाइश न दे तो मुझसे गुंजाइश मांग रहा। सुने, वारिस वही सच्चा है जो मूरिस की तरतीब पे चले। या तो हमें अंबिया में कहीं दिखा दो कि किसी नबी ने कोई अकीदे में गुंजाइश दी, किसी ने दी। याद रखें, अकायद में गुंजाइश कहीं भी 1,24,000 अंबिया हैं, किसी नबी की शरीयत, चाहे वो पिछले नबी की आगे बढ़ा रहा हो या अपनी शरीयत लेके आया हो, किसी जगह भी हमें अकायद में नरमी नहीं मिलती। अकायद है, इसीलिए तो आप सुनते रहते हैं ना गुफ्तगू में, हमारी जमात के बुजुर्ग सुनाते हैं कि भाई नबुव्वत के कलमे में पहला हिस्सा कभी तब्दील नहीं होता था। सुना नहीं सुना? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह से लेकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक, कहते हैं वो ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही था हर नबी के कलमे में, है या नहीं है? जो हमारी जमात के बुजुर्ग फरमाते हैं ना कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक ही था, ये उसी को मैंने अपने लफ्ज में कहा कि अकीदे में किसी ने गुंजाइश दी ही नहीं। ये उसी का तो तर्जुमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बदला, पता चला अकायद में मजबूत हर नबी रहा। तो जब नबी का वारिस आलिम है, आप मेरे पास इसलिए नहीं आए कि जो मेरे मुंह पर बुलबुलें बैठी हैं, आप उलमा को इसलिए नहीं बुलाते कि उलमा की बात है, आप इसीलिए आलम की इज्जत करते कि वो अंबिया के वारिस। सुभान अल्लाह। फिर जिसकी वजह से इज्जत हो रही है उस नबी ने इसमें गुंजाइश नहीं दी, तो हम कहां से दे? सुने, मैं एक जुमला समझाने के लिए कहता हूँ, इसीलिए हम सब अकायद पर मजबूत हैं और अकीदा खत्म नबुव्वत रसूलुल्लाह की जात के बारे में जितने अकायद हैं उनकी बुनियाद। और एक जुमला समझाने के लिए कहने लगा हूँ, हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह ने मेहनत करके पूरे कुरान करीम में से 100 कुरानी आयात इकट्ठी की, हुजूर पाक की हदीस में 210 हदीसें इकट्ठी की और उस किताब का नाम रखा खातिबुन नबिय्यीन कामिल। 100 कुरानी आयात जहां से अकीदा खत्म नबुव्वत साबित है, 210 अहादीस जहां से अकीदा खत्म नबुव्वत साबित है। मुझे बताएं, अगर खत्म नबुव्वत में डंडी मारना हम कबूल कर लें, गुंजाइश देना हम कबूल कर लें, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए, फिर इसका मतलब है कुरान में 100 जगह अल्लाह ने झूठ बोला। नरमी आ गई ना अकीदा खत्म नबुव्वत में, फिर तो झूठ बोला। हालांकि आपको और हमारा अकीदा है, नजरिया है, मौकिफ है, बयानिया है और हमारा ऐलान है कि अल्लाह के कुरान में पूरे के पूरे 30 पारे में 114 सूरतों में 120 पाओ में 540 रुकू में 7 मनाजिल में 86 मक्की 28 मदनी सूरतों में कुरान की न किसी सूरत में कोई तब्दीली है, न किसी पारे में तब्दीली है, न किसी आयत में तब्दीली है, न ज़बर ज़ेर में तब्दीली है। सब कुछ सच्चा है। तो जब सब कुछ सच्चा है तो फिर इसका मतलब है अकीदा खत्म नबुव्वत की 100 आयात भी सच्ची हैं, आपको गुंजाइश नहीं। और अगर कोई कह दे रिसालत मआब इस्लाम की अकीदा खत्म नबुव्वत में नरमी दे दे, तो नबी ने 210 अहादीस में जो खुद को खातिबुन नबिय्यीन फरमाया है, अगर मिर्जे को गुंजाइश दे के नऊज़ बिल्लाह कुछ न कुछ मान लिया जाए तो उस जबान की सच्चाई पे फर्क आएगा जिसने कभी झूठ बोला। नारा तकबीर, मिर्जा कादियानी पे लानत, 2 लकड़ियां 2 काने, मिर्जा मनिया टट्टी खड़ने, 2 लकड़ियां 2 काने, 2 लकड़ियां 2 काने। कादियानियत मुर्दाबाद, कादियानियत, कादियानियत।
मेरे दोस्तों एक बात ज़हन में रखना, रिसालत में आपकी ज़बान अक़दस कितनी सच्ची है। आओ मेरे ज़हन में एक हदीस आई, मैं आपकी खिदमत में पेश करता जाऊँ। खोलिए सुनन नबी दाऊद, खोलिए जिल्द नंबर 2 खोलिए, किताबुल इल्म खोलिए, बाब किताबुल इल्म खोलिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाहु अन्हु पैगंबर के रावी हैं, पैगंबर के सहाबी हैं, वो इस हदीस के रावी हैं। वो फरमाते हैं कुल्ल शैइन अस्मउ मिन रसूलिल्लाहि अक्तुबुहु, पैगंबर जो फरमाते मैं नबी की हदीसों को लिख लेता। फनहतनी कुरैश के जिल्ला सहाबा ने मुझे रोका और कहने लगे अतक्तुबु कुल्ल शै, तू हर चीज लिख लेता है। मैंने कहा जी हाँ, मैं हर चीज लिख लेता हूँ। वो कहने लगे रसूलुल्लाह बशरुन यतकल्लमु फिल ग़ज़बि वर रज़ा, पैगंबर इस्लाम बतौर फितरत इंसानी कभी गुस्सा करते हैं, कभी प्यार में बात करते हैं, कभी मोहब्बत मवद्दत में बात करते हैं, कभी किसी को डांट देते हैं। तू हर बात लिख रहा है, तू ऐसा मत कर। मैंने पूछा फिर मैं क्या करूं? उन्होंने कहा सिर्फ मसाइल लिखा कर। फामसक्तु अनिल किताब, कहते मैं लिखने से रुक गया। फज़करतु ज़ालिका लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन हुज़ूर पाक ने आंखों में मुझे देखा कि मैं हदीस बयान कर रहा पर अब्दुल्ला लिख नहीं रहा। मामला क्या है? मैंने सरकार दो आलम की खिदमत में ये बात अर्ज कर दी कि या रसूलल्लाह, मेरी चाहत तो ये थी, मेरी कोशिश तो ये थी कि अपनी सलाहियत लगा के आपकी एक हदीस को लिख लूं, लेकिन मुझे बुजुर्ग साहबा ने रोका है। वो कहने लगे पैगंबर करीम कभी गुस्से में बात फरमाए, कभी किसी को डांट दे, कभी किसी के साथ हंसी और मजाक करे, कभी किसी के साथ प्यार और गपशप में बात करे, तो सब कुछ लिखी जा रहा, तो सब कुछ मत लिख, सिर्फ और सिर्फ मसाइल लिख। फामसक्तु अनिल किताब या रसूलल्लाह, इसलिए मैंने हदीसें लिखना छोड़ दी कि सिर्फ मसले लिखूंगा। भागलपुर के गयूरों, आज सुनन नबी दाऊद खोलिए, इमाम अबू दाऊद सुलेमान इब्न अशअस अस्सिजिस्तानी रहमहुल्लाह ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अम्र इब्न आस रज़ियल्लाहु अन्हु के वास्ते से इस हदीस पाक को लिखा है। हुज़ूर पाक ने उंगली उठाई, मुझे देखिए, ये उंगली उठाई, वही उंगली जो कभी चांद पे उठी थी, जिसे अल्लाह का कुरान कहता है एक तरफ साअतु वंशक्कल कमर, उंगली पैगंबर की फर्श पे उठी थी। अल्लाह ने अर्श से हुक्म दिया था, चांद दो टुकड़ों में बदल गया था, वही उंगली पैगंबर की उठी। फाउमा बिअस्बइही लाफी, हुज़ूर पाक ने अपने मुंह मुबारक की तरफ इशारा किया और फरमाया अक्तुब फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही मा यख़रुजु मिन्हु इल्ला हक़। भागलपुर के गयूरों, पैगंबर ने कॉलेज में खल फरमाया अब्दुल्ला, आज के बाद लिखना शुरू कर दे, न देखना मैं गुस्से में बोल रहा, न और करना मैं प्यार में बोल रहा, न तवज्जो करना मैं किसी के साथ गपशप कर रहा। फवल्लज़ी नफ़्सी बियदिही, उस अल्लाह की जात की कसम जिसके कब्जे में अब्दुल्ला के लख्ते जिगर था, हाथ जिसके कब्जे कुदरत में अब्दुल्ला के लख्ते जिगर की जान है, हाथ दुर्रे यतीम की जान है, उस अल्लाह की कसम इस ज़बान पर उसी अल्लाह का पैरा है, ज़बान से जो भी निकलेगा हकीकत निकलेगा। शान मुस्तफा, मकाम मुस्तफा, इज्जत मुस्तफा, रिफात मुस्तफा। ज़बान नबुव्वत तो इतनी बड़ी सच्चाई रखने वाली है, अगर मैं गुंजाइश की बात मान लूं कि जी हुजूर के बाद नबुव्वत की बात चलो कुछ न कुछ दर्जे में मान ले, अगर मान ले तो इस ज़बान की सच्चाई पे हर्फ आता है। और मेरे साथियों, मैं एक बात मजीद समझाने लगा, मेरे पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत इस बुनियाद पे हम कहते हैं कि ईमान की बुनियाद है, अगर ये हिल जाए तो इस्लाम की इमारत मुतज़लज़ल हो जाती है। बेशक बेशक। और सुने, हर दौर में मुसलमानान उम्मत ने इस अकीदे पर पहरा दिया। आओ मैं एक जुमला समझाने लगा हूं। इस धरती में कौन नरम है, कौन गरम है, किसकी बात मानो किसकी ना मानो, मेयार क्या है, कौन तोलेगा कि नरम कौन है, कौन तोलेगा? मैं तवज्जो से समझाने लगा। जुमा के खुतबे में आप जो हदीस पाक आलिम और खतीब से सुनते हैं, मैं उसी को पेश करने लगा। सरकार दो आलम के दरबार में चलते हैं, ए अल्लाह के रसूल आप ही बता दें, आपको तो रब ने
وہ علوم دیے ہیں جو علوم کسی نبی کو بھی نہیں ملے. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ. آپ کو تو رب نے پڑھایا ہے. آپ فرمائیے امت میں سب سے بڑا نرم کون ہے؟ تو میرے پاک نبی کا ارشاد ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر. حدیث ہے یا نہیں ہے؟ ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدهم فی امر اللہ عمر واسبقهم حیاء عثمان واقضاهم علی. سب سے زیادہ جو نرم ہے وہ ابو بکر ہے. دین میں جو سب سے زیادہ مضبوط اور سختی رکھنے والا ہے وہ عمر ہے. اور جو حیا میں سب سے بڑھ کے سچا ہے وہ عثمان ہے. اور اس دھرتی کا صحابہ میں چیف جسٹس قاضی اور قضات ہیں تو وہ حضرت علی. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، شان اہل بیت، ہر اصحاب یہ نبی، ہر اصحاب یہ نبی. میرے پاک نبی نے چاروں کی فضیلت سنائی لیکن میں صرف حضرت ابو بکر پہ بات کرتا ہوں عنوان کی وجہ سے. ارحم امتی بی امتی ابو بکر. سب سے زیادہ نرم پوری امت میں حضور پاک فرماتے ہیں ابو بکر ہے. یہاں آپ نے کبھی غور کیا کہ امت کا لفظ 2 دفعہ کیوں ہے؟ ارحم امتی بی امتی. ارحم امتی ابو بکر جملہ مکمل ہے. عربی میں جملہ مکمل ہے. ارحم امتی ابو بکر، افضل امتی ابو بکر، اکرم امتی ابو بکر. اسے کہتے ہیں کمپلیٹلی سینٹینس. ٹھیک ہے، یہ مرکب مفید ہے، مرکب ناقص نہیں ہے علماء کی زبان میں. یہ پوری بات ہے. تو ارحم امتی میں اب بھی امتی ابو بکر کی بات 2 دفعہ امت کیوں آئی؟ سمجھانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں. توجہ کرنا. ترازو میں کوئی چیز تلتے ہوئے تو آپ نے دیکھی ہوگی. ایک پلڑا ہوتا ہے، 2 ہوتے ہیں. بولیے بولیے، آخر تک مجھے جواب چاہیے. ترازو کے پلڑے کتنے ہوتے ہیں؟ 2. رسالت میں آپ سمجھانے لگے ہیں وزن کے طور پہ کہ لوگوں امت میں بڑے نرم لوگ آئیں گے، بڑے شفیق آئیں گے، رحیم آئیں گے، کریم آئیں گے، بڑی نرمی دکھانے والے آئیں گے. لیکن اگر وہ سارے ترازو کے ایک پلڑے میں ہیں، وہ سارے ترازو کے ایک پلڑے میں ہوں. ارحم امتی پھر بی امتی ابو بکر. پوری امت کی نرمیاں، شفقتیں، رحمتیں، کرم نوازی ایک طرف، اکیلا ابو بکر ایک طرف. تو ابو بکر سب سے بڑھ کر. نعرہ تکبیر، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارحم امتی بی امتی ابو بکر. اتنا نرم. اب آؤ ذرا اس سے پوچھتے ہیں کہ کیا عقیدہ ختم نبوت پہ نرمی دی جا سکتی ہے؟ یا اس کے دربار میں تو کوئی نرمی مل جائے گی نا؟ اتھو لب جائیں گے. ہاں کسی اور تو نہ لبے، ادھر سے تو مل جائے گی نا. ابو بکر کے ہاں تو نرمی، یہاں تو تھوک کے حساب سے ہے، ایسے نہیں ہے. پرچون دی غلطی ایسی نہیں کریں گے نا، ہول سیل کی بات کریں. ابو بکر کے ہاں تو نرمی. سیل یہاں بکنے کے معنی میں نہیں ہے، سمجھانے کے معنی میں. کہیں آپ کل مجھے کہتے ہیں ابو بکر نرمی بیچتے ہیں. سنیں تو یہاں تو بالکل وافر مقدار میں ملے گی. آئے ذرا ابو بکر صدیق کے دور کو دیکھتے ہیں. کل 2.5 سال کی خلافت ہے اور اس میں مرتدین سے علیحدہ ٹکر ہے، مانعین زکوٰۃ سے الگ معاملہ ہے. لیکن جتنی مضبوطی ابو بکر نے مسلمہ قذاب کے مقابلے میں دکھائی ہے کہیں نہیں. پہلے میں یہ حدیث سنایا کرتا تھا تو میں نے اس جگہ کو دیکھا تھا. مجھے مفتی حسن صاحب نے حضرت ایک دن فرمایا، ہم لاہور میں تھے، مفتی حسن صاحب فرمانے لگے میں نے یمامہ کی حدیث بیان کی نا تو مجھے بعد میں کہتے ہیں آپ گئے ہیں بھائی یمامہ؟ میں نے کہا میں نہیں گیا. تو کہتے بیان تو ایسے کرتے جیسے آپ گئے ہیں. میں نے کہا جی میں نے پڑھا ہے تو اس انداز سے گفتگو کر لیتا ہوں. تو کہتے ہیں یار آپ یمامہ جا کے دیکھیں تو حضرت ابو بکر صدیق کا اس مارکہ آپ کو سمجھ آئے. میں نے انہی کے کہنے پہ 2 مرتبہ یمامہ کا سفر کیا. ایک تو اسی سفر میں ہو کے آیا ہوں، ایک اس سے پہلے بھی گیا. یمامہ ایک بستی کا نام ہے، یہ نجد میں ہے. سعودی عرب کا دارالخلافہ ہے ریاض. ریاض سے 100 کلومیٹر دور ہے یمامہ. یہ یمامہ بستی ہے.
दरअसल मुसलमा की 4 बीवियां थी, यमामा, गुबैरा, जुहैफा और चौथी भी कोई एक थी। ये 4 बीवियां हैं। तो रियाज के 4 एरियाज जो बने हैं ना, उनके इलाकों के नाम भी यही रखे। मैं गुबैरा में गुफ्तगू कर रहा था तो वहाँ कुछ दोस्त आए ना, वो यमामा के एरिया के थे। मैंने बताया यमामा तो मुसलमान का साहब की बीवी का नाम है। तुम्हारे गुबैरा के दोस्त कहने लगे, ओ तुसी तो मुसलमान के रंग इलाके दो। मैं जी तुसी फखर न करो, तुसी भी गुबैरा ओ इलाके दो। तो बहरहाल ये 4 एरियाज है ना रियाज के। रियाज के सेंटर को वस्तुर रियाज कहते हैं, जहाँ पे वजारत दाखिलिया का और बड़े वजारतों के ऑफिस मौजूद हैं। चलो मैं यमामा की बात कर रहा हूँ। यमामा बस्ती उसकी औरत की वजह से नाम पड़ा। हुआ क्या, हजरत अबू बकर सिद्दीक के दौर में इसने झूठी नबुव्वत का ऐलान किया और अपना झूठा मोजा दिखाया कि 5 नमाजों में 2 मना है, बस 3 ही पढ़। ठीक है, ये नमाजों को कम करने की तरतीब वहां से चली हुई है। तो भाई इतने बाकी माफ है, मोजा दे दिया। और इस बेईमान ने सारा काम किया। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा को इकट्ठा किया और सबसे पहले खुद फरमाया कि मैं इस लश्कर को लीड करूंगा। ये तो रब करीम जज़ाए खैरत फरमाए, अल्लाह करोड़ों अरबों रहमतें फरमाए हजरत सैयदना अली रज़ी अल्लाह की खबर मुबारक में कि उनने दामन अबू बकर को थाम के फरमाया था, अबू बकर हम जाएंगे, आप यहाँ रहें। ये जो खलीफे वक्त एक जगह रह के कमांड करे, इसकी बुनियाद हजरत अली अल मुर्तज़ा का ये मुतालबा है। हजरत अली अल मुर्तज़ा ने दामन अबू बकर को पकड़ के फरमाया था, आप नहीं जाएंगे, हम सबको इकट्ठा करेंगे। फिर वही हुआ, ये जो लश्कर इकट्ठा हुआ ना, जिसे लश्कर जर्रार कहते हैं, इसमें कितने सहाबा इकराम गए हैं और कितनों ने वहां जाके शहादत पाई है। मैं फिगर बताऊं ना, आप हैरान हो जाए। आओ तराजू के 2 पलड़ों की बात कर लेते हैं। रिसालत मआब, तवज्जो तवज्जो, रिसालत मआब अलैहिस्सलाम की मदनी जिंदगी में जिहाद हुआ। 10 साल का जिहाद है और हर 4 माह बाद एक जंग है। कुल 27 गज़वात हैं, 400 सरियात हैं। रिसालत मआब अलैहिस्सलाम के सहाबा ने ये 427 मुहिम जोइयां की है। इसमें कितने काफिर कत्ल हुए, कितने मुसलमान शहीद हुए। हुजूर की बदर भी है, ओहद भी है, खंदक भी है, आज़ाब भी है, औतास भी है। हुजूर पाक का सफर औद हमरा भी है, ज़ुल्कुशैरा भी है, ग़ज़वे अबवा भी है, ग़ज़वे बुहैत भी है, पैगंबर इस्लाम का ग़ज़वे तबूक भी है। रिसालत में आपके असफार हैं। इन तमाम सफरों में काफिरों का मुकाबला होता है, मुसलमान भी शहीद होते हैं, काफिर भी कत्ल होते हैं। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह बैठ के सहाबा की तशकील भी की है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को भेजा भी है। 70 सहाबा बेरे मऊना के शहीद हैं। वादिये मुरैना के लोगों ने भी गद्दारी की थी। पैगंबर इस्लाम के सहाबा की शहादत वही भी है। एक मकाम पर ये चीजें मौजूद हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, अगर आप तारीख के स्टूडेंट हैं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी है, तो आप इमेजिन कीजिए, काउंटिंग कीजिए, गिनती कीजिए, तलाश कीजिए, आपको मिलेगा रिसालत मआब की पूरी जिंदगी में जितने मुसलमान शहीद हुए, जितने काफिर कत्ल हुए, दोनों को मिलाए तो 750 से आगे फिगर नहीं जाता। 739 के लगभग कुल अमवात है, जिसमें सहाबों की शहादत भी है, काफिरों की मुर्दारी भी है। कुल मिला के 750 बंदा इस दुनिया में कत्ल हुआ है। ये 10 साला पैगंबर का जिहादी सफर है। लेकिन जब बात अकीदे खत्म नबुव्वत की आई, जब पहला खत्म नबुव्वत में दिया जाने लगा, अरहम उम्मती भी उम्मती, अबू बकर का दौरे खिलाफत था, इस नरम रहीम और करीम शख्स का दौरे हुकूमत था। सहाबा गए हैं यमामा में 2 मरतबा, ये मुसलमान से जंग हुई है। एक यमामा का एरिया है, एक जुबैलिया का एरिया है। जुबैलिया में हजरत इकरमा बिन अबी जहल गए हैं, ज़ैद बिन ख़त्ताब गए हैं। इन 2 सहाबा के लश्कर से यमामा की जंग हुई, यमामा के मैदान में जंग हुई। यहाँ से वो दौड़ा और गया अल-खर्ज के इलाके में, जो रियाज की दूसरी तरफ का हिस्सा है। वहां पे जाके किला बंद हो गया। अब 2 बातें थी, या तो 6 महीना इंतजार करके बाहर हाथ पे हाथ रख के बैठा जाए, या अज़ीमत पे अमल करते हुए इन किले की दीवारों को हिला दिया जाए। ये बात हजरत अबू बकर तक पहुंची। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने
मुनकरीन के साथ जंग करते हुए हजरत खालिद इब्न वलीद को हुक्म दिया, खुद भी चलो। हजरत शुरहबील इब्न हसना रज़ियल्लाहु अन्हु को लेकर साथ चलो और यमामा में वहां पहुंचो और मुसलमान से जंग करनी है। ये लश्कर जर्रार पहुंचा है, तकरीबन 12,000 के लगभग सहाबा किराम का ये लश्कर बनता है। ये वहां पहुंचे, अब किला बंद हो चुके हैं। 6 महीने की खुराक मुसलमान कज़्ज़ाब के साथियों ने अपने अंदर स्टोर, किले में स्टोर की हुई है। अब सहाबा बैठे रहे, फरमाया जी नहीं, मदीना तैयबा से चलते वक्त हजरत अनस इब्न मालिक के बड़े भाई है, इमाम इब्न कसीर ने इनका नाम बरा इब्न मालिक रखा है रज़ियल्लाहु अन्हु। 4 खूबसूरत मोतियों जैसे बच्चों के वालिद थे, पर खत्म नबुव्वत में फेरा देते हुए जब मदीना से चलने लगे, अपने बच्चों के सर पे हाथ रखा, बीवी के सर पे हाथ रखा और कहने लगे मदनी करीम की खत्म नबुव्वत पे कुर्बान होने का वक्त आया है, मैं जा रहा हूँ, हौज़े कौसर पे मिलेंगे, रसूलुल्लाह के हाथों जामे कौसर पिएंगे। अपने 4 खूबसूरत हसीन महजबीन दिल नशीन बच्चों को छोड़ के, जवान बीवी को छोड़ के 1000 किलोमीटर सफर करके ये लोग पहुंचे हैं वहां यमामा में। उससे जंग हुई तो बड़ा कहने लगे, इनका अंदर खूने ईमान का जोश मार रहा था। सहाबा दोस्तों को कहने लगे, हमने बड़ी गेम खेली है, आओ काफिरों से भी एक गेम और खेल खेलते हैं। कहते क्या है? कर रोजाना इनको दिखाएंगे कि हम बांसों से बांस बांध के ऊपर नीचे करके वक्त पास करते हैं, ताकि वहां के पहरादार समझे कि जब बांस बांधे जाएंगे वो समझेंगे ये तो खेल कूद है। लेकिन एक दिन आया जब वो गाफिल हो गए, फिर इन्होंने बांसों से बांस बांधे, ऊपर ढाल रखी, उसके ऊपर ये बैठे, कहा मुझे ऊंचा करो, मैं किले की दीवार पे पहुंच के अंदर छलांग लगाऊंगा, दरवाजा खोल दूंगा। जो 6 महीने की खुराक काफिर ने जमा की है, 6 घंटे भी इनके लिए हम नहीं रखने देंगे। फिर वही हुआ, आसमान की आंख ने वो मंजर देखा, इस कुर्रे अर्ज़ के ऊपर जमीन में बड़े बहादुर देखे होंगे, बड़े निडर देखे होंगे, बड़े दिलेर देखे होंगे, बड़े शुजा देखे होंगे, लेकिन मार्का यमामा में वो कहते हैं ना, मारी मार अयतु अहदन युहिब्बु अहदन कहुब्बि असहाबि मुहम्मद मुहम्मदा। जैसे मोहम्मद के सहाबा ने मोहम्मद करीम से प्यार किया है, मोहब्बत रखी है, मवद्दत रखी है, अकीदत रखी है, यकीनत रखी है, उल्फत रखी है, ताल्लुक रखा है, इस जैसा ताल्लुक इस धरती पे किसी माँ की कोख ने बेटा जना नहीं है जो ऐसा प्यार कर दिखाए। कोई बेटा पैदा नहीं किया जो ऐसी मोहब्बत कर दिखाए, कोई फर्जंद ऐसा नहीं जना जो इस जैसा मुती, फरमाबरदार, हुक्मदार, दिलदार, वफादार यार दिखाए। जैसे हुजूर को अल्लाह ने यार दिए थे, फिर इस सहाबी को उठाया गया, कितने फुट ऊंची दीवार थी, वो किले पे चले, नीचे छलांग मारी, सिर्फ सहाबी नहीं गया, ये अल्लाह का कहा उतरा था, अल्लाह का अजाब बन के, सौत अजाब रहमान बन के बरा इब्न मालिक ने छलांग लगाई थी। फिर कुफार ने न नेसा देखा, न तलवार देखी, न और कुछ देखा, इस पे टूट पड़े, 80 से जायद इस शख्स ने जख्म खाए, पर दरवाजा खोल दिया। बाबर नगर के गयूरों, दरवाजा खुलने की देर थी, रसूलुल्लाह के शेर ऐसे इन पे पड़े हैं जैसे पढ़ने का हक होता है। फिर ये पहुंचे, वहां जंग हुई, फिर इन लोगों ने कुर्बानी भी दी है। 26,000 के लगभग कुफार कत्ल होते हैं, 1200 रसूलुल्लाह के सहाबा शहीद होते हैं, जिनमें 700 कुरान का कारी है। हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु इस जंग का आंखों देखिए बताते हैं कि इस वक्त मैं जब आगे हुआ तो वाशी बिन हर्ब ने हरबा सवाला हुआ था, उसकी आंखों में आंसू थे, वो कह रहा था कतल तू खैरन नास, लोगों मुझसे गलती हुई थी, मैंने इस धरती के बेहतर इंसान के चचा हजरत अमीर हमजा को कत्ल किया था। हुजूर ने माफी दे दी, लेकिन अपने पीछे बिठाया, मेरे लिए सजा से कम नहीं था कि मैं अंबर का दीदार नहीं कर सकता था। आज वक्त आया है, मैं अपने दामन पे लगे हुए इस दाग को धो दूं, अजली सालिका अक्तुलु शर्रन नास, इस वजह से मुझे कत्ल करने देना, मुसलमान को मैं मारूंगा। जो ताजे नबुव्वत सुल्तानी पे हमला आवर होगा, इसे वाशी का हरबा उसी तरह मारेगा जैसे
जैसे वाशी ने ट्रेनिंग ली थी, हजरत वाशी ने हर मारा, मुसलमान को लगा ए बंदा मरो। उस वक्त इन लोगों के आसान खता हो गए। मैं वाकया नहीं सुना रहा, मैं तुम्हारी गैरत के दरवाजे पे दस्तक देने आया हूँ, या बताने आया हूँ। नरम तरीन शख्स का दौर है, नरम तरीन खिलाफत का दौर है। रसूलुल्लाह के सहाबा गए हैं जो हुजूर के दौर में काफिर मुसलमान मिला के 750 अम्बार थी, आज अकेले हुजूर के सहाबा 1200 दबा हुए हैं, पर अकीदे पे नरमी नहीं दी गुंजाइश नहीं। नारा तकबीर, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान सहाबा, मकाम सहाबा, इश्क सहाबा, गली गली नगर नगर मुस्तफा का हम सफर, गली गली नगर नगर कातबे कुरान है, नगर नगर गली गली शुहदाए खत्म नबूवत, शुहदाए खत्म नबूवत, जान सारान मुस्तफा, शुहदाए खत्म नबूवत, जनाब हज़रत मुफ्ती अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब, जनाब मौलाना यासिर रशीदी साहब। माशाल्लाह बात का मतलब माशाल्लाह जो माशाल्लाह कि अकीदा खत्म नबुव्वत पर गुंजाइशें मत ढूंढो, यहाँ मजबूती ही मजबूती मिले। मेरे साथियों, मैंने आयत भी पढ़ी है, हदीस भी पढ़ी है, अमले सहाबा भी पेश किया है। आखिर में अपने उलमा का किरदार पेश करना चाह रहा हूँ। हमारे अकाबर का किरदार है, कादियानियत पर पूरी तरतीब है, सब कुछ है। कौमी असम्बली में आज तो माशाल्लाह 50 साल पूरे होने का जश्न हम इंशाल्लाह मनाने पर हैं कि 7 सितंबर 1974 को कायद मिल्लत इस्लामी हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूद रहमतुल्लाह की क़यादत में तमाम मकातब फ़िक्र बरेलवी देवबंदी आले हदीस सब ने एक होकर कादियानियत की मंजी ठोकी थी। नारा तकबीर, सर बकौफ सर बुलंद, मुफक्किर इस्लाम हज़रत मुफ्ती महमूद, मुजाहिद इस्लाम हज़रत मुफ्ती महमूद, कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान। तो उसका हम 50 साल मना रहे हैं, गोल्डन जुबली। वो कहते हैं ना 25 साल पे होती है सिल्वर जुबली, 50 पे होती है गोल्डन जुबली, 76 पे होती है प्लैटिनियम जुबली, 100 पे होती है डायमंड जुबली। मैं तो अपने बच्चों को कहा कि आज मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, हमने 1974 नहीं देखा, हमारे बुजुर्ग मौजूद हैं, इनने देखा है, अल्लाह हज़रात को सलामत रखे। हमने 1974 नहीं देखा कि कादियानी जलील कैसे हुआ। हमने 1984 का ऑर्डिनेंस भी हज़रत ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह के दौर का नहीं देखा, लेकिन अदालत भी वही, कटहरा भी वही, जज का तकब्बुर जो बोल रहा था आसमानों को छू रहा था, जज भी वही। ठीक है, उसी अदालत के कटहरे में ठहर के फजलुर रहमान को शेर की तरह धारते हमने देखा। हमने ये अपनी आंखों से देखा है स्क्रीन पर जलील होते कादियानियत के मामलात को। और मैंने कहा गोल्डन जुबली तो उसी 22 अगस्त को ही हो गई, गोल्डन जुबली तो वही हो गई थी जब वो शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब को ये कह रहा था कि जी गलती हो गई, आपकी तहरीर नहीं पढ़ी। आज साहब तुमने उम्मत पे कोई एहसान नहीं किया, तुमने अपनी कब्र दुरुस्त की है, अपने बेंच की मग़फ़िरत का सामान रखा है, तुमने रसूलुल्लाह की इज्जत के बुनियाद पर ठीक काम किया है। हम आज तुम्हें खराज अकीदत पेश करते हैं। मैंने कहा था कि दुनिया की कब्रों पर नाम की तख्ती लगाई जाती है, तेरी कब्र पे 2 तख्तियां लगेंगी, एक पे नाम होगा, एक पे लिखा होगा यहाँ पेशाब करना मना है। जो बात लगती थी मैं उसके लिए कबूल था। क्यों कहा था? इस बुनियाद पे कि हम सबको मानते हैं मगर मुस्तफा के बाद, हमारी यारी हजरत रसूलुल्लाह की बुनियाद पर है। लेकिन माशाल्लाह आपने उस बुनियाद पर अपनी गलती को गलती माना, सिर्फ गलती भी नहीं थी, बहुत बड़ा ब्लेंडर था, को आपने एक्सेप्ट किया। हम आपके फैसले पर आपको खराज तहसीन पेश करते। इससे ज्यादा आप हमें और जो है ना क्या कहते हैं मोतदिल कहाँ पाएंगे। कल हमारा गुस्सा था, आज हमारी नरमी है, वजह ज़ात मुस्तफ़ा है। तो बहरहाल हमने वो गोल्डन जुबली तो देख ली,
میں نے بچوں کو کہا کہ میں تمہیں گولڈن جوبلی پہ لے کے جاؤں تاکہ تم یہ دیکھ سکو کہ ہم نے اپنی آنکھوں میں وہ منظر دیکھا ہے جسے 50 سالہ کہتے ہیں۔ مسلمانوں، وہاں صرف تمہاری اس مجمع میں شرکت ہو جائے، کسی ایک کونے میں بیٹھ کے ہم رب کے دربار میں اپنی بخشش کے لیے کہہ پائیں گے، اللہ تیرے نبی کے دشمنوں پر جب ہمارے اکابر نے وار کیا اور اس کے 50 سالہ جشن کی بات آئی تو ہم بھی وہاں شریک تھے۔ چلو چلو لاہور چلو 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 چلو۔ میرے دوستو، آپ جتنے دوست بیٹھے ہیں اور میڈیا کے ذریعے دنیا میں ہماری بات جہاں 4 دانگے عالم میں جا رہی ہے، میں سب کو کہتا ہوں آپ تیاری کریں، آپ اس کے بارے میں جتنا ہو سکتا ہے، یار بوڑھے بوڑھے بزرگ کوئی پیدل آ رہا ہے، کوئی بائک پہ آ رہا ہے، کوئی سائیکل پہ آ رہا ہے، ہم تو جوان ہیں، پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی۔ آج وہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھو جیسے 50 سالہ ختم نبوت کا تجدید عہد وفا کا۔ ہم کسی وجہ سے نہیں جائیں گے، ہم اپنے آقا نامدار سے تجدید وفا کرنے جائیں گے۔ دیکھو صحابہ کرام کی میں نے بات سنائی نا، حضرت براء ابن مالک رضی، یہ واقعہ ایسے ہے میں نے اس کو شارٹ کیا ہے، ورنہ یقین مانے یہاں کوئی آنکھ نہ ہوتی جس کے اندر آنسو ہو۔ حضرت براء ابن مالک نے جب بچوں کو چھوڑا تھا، مذاق کی بات۔ میرے دوستو، آج ہم چلیں، آج کوئی جنگ کی بات نہیں ہے، آج جشن کی بات ہے۔ چلیں گے نہیں چلیں گے؟ کتنے دوست بیٹھے ہیں، جائیں گے نہیں جائیں گے؟ چلیں گے نا انشاءاللہ؟ اس کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، جیسے مولانا کو نام لکھوانے نام لکھوائیں، یا آپ انڈیویجلی جائیں، خود جائیں گے، کوئی اس پر مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس پروگرام میں ہم ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ اور میرے ساتھیوں، میں اس بنیاد پر بات کر رہا ہوں کہ میرے اکابر کا کردار ہے، ہمارے اکابر نے قادیانیت پہ کام کیا ہے، اور ہمارے اکابرین نے قادیانیت کے معاملے میں اپنا فیصلہ منوایا ہے۔ اس وقت کی حکومت جناب ذوالفقار علی بھٹو کی تھی، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو پیپلز پارٹی کے تھے۔ پیپلز پارٹی سے آپ کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے، مجھے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس مسئلے پر جناب ذوالفقار علی بھٹو نے جو ایفرٹ کی ہے، آج بھی اسے دونوں ہاتھوں سے سلام پیش کرتے ہیں، ہم آج بھی اسے سلام پیش کرتے ہیں۔ اور سنیں، جو انہوں نے کام کیا یہ ان علماء کے ذریعے ہوا جن علماء کو سیاسی علماء کہا جاتا ہے۔ بات ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ میں تو بات گولی کرتا ہوں، ہر اسٹیج پہ کرتا ہوں، ہر جگہ کرتا ہوں۔ اس مسئلے تے ساڑی بریک شریک کو ہے نا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو کھلی کھلی بات ہے، کافر اقلیت قرار دلوایا ہے اگر قادیانیت کو سیاسی علماء کے سر پہ سہرا ہے۔ میں باقی علماء کا انکار نہیں کرتا، ہمارے تبلیغ کے علماء، تدریس کے علماء، تعلیم کے علماء، تجوید کے علماء، مدارس کے علماء، خانقاہ کے علماء، ان کو سلام ہے، ان نے محنتیں ضرور کی ہیں، لیکن جس نے اسمبلی میں بات کی ہے اسے سیاسی عالم کہتے ہیں۔ اس لیے مدرسہ مضبوط کرتے ہو، تبلیغ پر جاتے ہو، تعلیم کے لیے چلتے ہو، مسجد اور خانقاہ میں جاتے ہو، بہت اچھا کام کرتے ہو، دین کا کام ہے۔ جمعیت علماء اسلام کو بھی سپورٹ کرو، یہ بھی دین کا کام ہے، یاد رکھیں، یہ بھی دین کا کام ہے، اس کو بھی سپورٹ کرو۔ حضرت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ